منصوبے کے تحت 6 نہریں دریائے سندھ سے نکالی جانی تھی۔ یہ متنازع کہنا نہیں ہے، یہ غیر قانونی کہنا ہے۔ پانی سندھ کی زمینیں پہلے کتنی آباد تھی، ابھی کتنی آباد ہے، اور پنجاب کی زمینیں پہلے کتنی آباد تھی، اب کتنی آباد ہے۔ اس کے اندر یہ رکھا گیا تھا کہ 4 صوبوں کے 4 ممبر اور ایک جو ممبر جو وفاق کا ممبر ہوگا وہ سندھ سے بلانگ کرے گا۔ صحرائے چولستان کا 12 لاکھ ایکڑ ریگستانی علاقہ بھی سیراب ہوگا، یہ حکومت کا دعویٰ تھا۔ سندھ کے مظلوم لوگ کی بات آئے گی، جب دھرتی کی بات آئے گی تو میں قلم اور کیمرہ کے ساتھ روڈوں پہ احتجاج بھی کروں گا کہ دھرتی میری ماں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد ہی انہوں کو واپس اپنے پہ لے کے آئے گی، یہ کینال مکمل انہوں کو رد کرنے پڑے گا۔ جس طرح سے 48% پنجاب کا ہے، 42% سندھ کا ہے، اس کے علاوہ کے پی کا 7 ہے، بلوچستان کا 3% ہے۔ یہ ان مظلوم کے بہت آگے بات ہے کہ یہ دھرتی کی بات ہے، یہ سندھ کی بات ہے، یہ سندھ کے 7 کروڑ لوگوں کے ایک ایسے کہا ہے کہ سروائیول کا مسئلہ ہے۔ یہ پیپلز پارٹی حکومت کو دھمکیاں دے رہی ہے، حکومت انہیں دے رہی ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے؟ ڈاکٹر قادر منسی کی یہ ابھی ہمارا 4تھا فیز کل سے چلے گا، جس میں پوری سندھ میں دھرنے ہیں۔ جو قانونی حساب سے جو ہے کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق جو ہے کہ جو ٹیل کے اندر ہے، ڈاؤن اسٹریم کے اندر ہے، ان کا مور افیکٹو رائٹ ہے مور دین ان سے۔ جب سندھ کے مظلوم کی بات آئے گی تو غیرت مند صاحب ہی میرے خیال میں وہ قلم اور کیمرہ کے ساتھ اس کے ساتھ روڈ پہ پرامن احتجاج کے ذریعے قانونی مدد کے ذریعے اس کا ساتھ ضرور دے گا۔ ملک کا پریزیڈنٹ زرداری صاحب اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں تو آپ نے جو این او سی دی ہے، جیسے سندھ اسمبلی میں آپ نے اس چیز کو لے کے آئے، کیونکہ معیشت تباہ ہو گئی ہے، سندھ کی لوگ سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، کاروبار خراب ہے لوگوں نے اپنی زندگی اور بقا کی جنگ سمجھا ہے۔ کہ ڈھابے جی کے کراچی کے اندر جب پائپ لائن کوئی ٹوٹتی ہے تو 3-4 دن کے لیے جو ہے پانی کراچی میں میسر نہیں ہوتا، جو ٹینکر مافیا جو ہے ان کو پانی پہنچاتی ہے۔ یہ سارا جو ہے ایمبیگوٹی اور چھپا کر یہ سارا انڈر گراؤنڈ سارا کام کر رہے ہیں، جس میں ہمارا سندھ جو ہے بہت افیکٹ ہوگا۔ پنجاب پہ ریگستان کے لیے یہ پانی تو ہاتھ کرتے ہیں، پر سندھ کے تھر کے لیے کبھی انہوں نے کام نہیں کیا ہے۔ تو میرے خیال سے جو ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا حکومت میں ہوتے ہوئے جو اپنا اپروپریٹ کام ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، کیونکہ صدر ایسے اپروول دے ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو کراچی والوں کو یہ ہم سے زیادہ احتجاج کرنا چاہیے تاکہ یہ پانی آ کہاں سے رہے۔ بھائی سمندر وہ ریت تو آنے سے رہی ہے، تو سب سندھ کے دریا کا ہی پانی ہے نا جو ڈھابے جی تک پہنچتا ہے۔ جب تک جس سمندر کو پانی دریا کا، سندھو دریا کا ادھر جا کے پہنچے گا تو وہ پیچھے ہٹے گا، نہیں تو سندھ میں قیامت برپا ہوگی۔ تو حکومت کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے، حکومت کو ڈیسیشن لینا چاہیے نا۔ اپوزیشن کا احتجاج بنتا ہے، ہم نے تو اپنے لائف میں یہی دیکھا ہے۔ جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنا جوائنٹ ہاؤس سیشن کے اندر انہوں نے اپنا کلیئر موقف دے چکے ہیں، جو اپروپریٹ فورم کے لیے، سپریم فورم کے لیے۔ اور انشاءاللہ ایس ٹی پی ڈاکٹر قادر منسی کی قیادت میں یہ کینال واپس انہوں کو لینے پڑیں گے۔ انہوں کو سوچنا چاہیے، حکومت انہوں کے ہاتھ میں ہے، مشینری انہوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے کہ بیرسٹر ضمیر بمر صاحب جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی قانونی چارہ کر کے عیسیٰ کے سرٹیفکیٹ کو چیلنج بھی کر دیا۔ آج انشاءاللہ یہ جدوجہدی جنرل جہاد جیسے عامر کو جب وہ کر سکتے ہیں تو وفاق اور شہباز شریف ہو یا آصف زرداری ہو، ان کو انشاءاللہ تعالی جب تک یہ ہمارا پانی بالکل نہیں ہوگا تو ترقی پسند پارٹی اس پہ سراپا احتجاج ہوگی۔ اعتراضات جو سی ایم ہاؤس میں سے جو اعتراضات جو ہیں سی سی آئی کی طرف جا چکے ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نواب شاہ کی بات ڈاکٹر راہیل راٹھور کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سندھ میں متنازع 6 نہروں پر بہت زیادہ بحث چل رہی ہے اور بہت زیادہ احتجاج چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے بتائیں کہ یہ جو 6 نہریں نکالی گئی ہیں اس کا مادر وجود کیا ہے، سندھ کے لوگ کیوں اس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ پہلے تو صوبائی سطح پر اٹھایا گیا، جو یہاں پر تنظیمیں ہیں، جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کی طرف سے، اس کے بعد اس کو نیشنل پولیٹکس کا حصہ بنایا گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ منصوبہ 10 جولائی، سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں یہ جو متنازع نہریں ہیں اس کا منصوبہ کیسے بنا۔ اس کا منصوبہ 10 جولائی 2023 کو حکومت پاکستان نے گرین انیشیٹو پاکستان کا آغاز کیا۔ اس منصوبے کے تحت 6 نہریں دریائے سندھ سے نکالی جانی تھی، جنہیں اسٹریٹجک کینال بھی کہا جا رہا تھا۔ اس کے بعد منصوبے کے مطابق 3 نہریں جو ہیں 3 نہریں سندھ سے نکالی جانی تھی، 2 پنجاب سے اور 1 خیبر پختونخوا سے نکالی جانی تھی۔ اس کے بعد پنجاب کی 35 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے
اس کو انہوں نے آباد کرنا تھا، اور صحرائے چولستان جو مین جو ہے اس کینال کی جس پہ اعتراض چل رہا ہے، صحرائے چولستان کا 12 لاکھ ایکڑ ریگستانی علاقہ بھی سیراب ہوگا، یہ حکومت کا دعویٰ تھا۔ اس کے بعد اور یہ قابل کاشت بھی ہو جائے گی زمین۔ اس کے بعد جو ہے ملک میں کثیر زرع مبادلہ بھی لایا جائے گا۔ حکومت دعویٰ کر رہی تھی کہ سندھ میں رہنے والے حکومت دعویٰ کر رہی تھی کہ جو جس طریقے سے مصدق ملک صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس سے فائدہ جب اٹھایا جائے گا تو صوبائی حکومتیں، جو بھی حکومت اس کو سپورٹ کرے گی الگ الگ صوبوں کی، اسے 40% حصہ دیا جائے گا۔ لیکن سندھ کے جو کاشتکار تھے انہوں نے احتجاج شروع کیا، یہاں کی لوکل پالیٹکس ایکٹیو ہوئی، جس کے بعد جو ہے اب یہ ملکی سطح پر چلا گیا ہے۔ ہمارے آج جو مہمان ہیں، ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں جو سابق صدر بھی ہیں ہمارے پریس کلب نوابچہ کے، ذوالفقار خاسکیلی صاحب۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں سائیں بخش زرداری صاحب، یہ وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ہائی کورٹ کے بھی وکیل ہیں اور بڑے بڑے کیسز لڑتے ہیں، ہم ان سے قانونی نقطہ نظر لیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں نثار کیریو صاحب موجود ہیں، یہ وائس چیئرمین ہیں پورے سندھ کے ایس ٹی پی کے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم معزز مہمانوں کو، اور اب ہم چاہیں گے کہ ہم سب سے پہلے ذوالفقار خاسکیلی صاحب سے پوچھیں کہ وہ اپنی قیمتی رائے دیں کہ یہ جو متنازع 6 نہریں ہیں، اس کے مسئلے پر اتنے زیادہ احتجاج اور سندھ کے جو کاشتکار ہیں وہ کیوں ایکٹیو ہوئے؟ سر سب سے پہلے رائے صاحب میں آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ایک سیریس ایشو ہے جو سندھ کا بلکہ پورے پاکستان کا ہے۔ میں تھوڑا سا کریکٹ کرنا چاہوں کہ یہ متنازع کینال نہیں ہے، یہ غیر قانونی کینال ہے، کیونکہ یہ کینالس جب بنتے ہیں تو اس میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اسمبلی سے جا کے سینیٹ، اس کے بعد میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب اس کو اپروو کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی فارمیلٹیز لیگل فارمیلٹیز پوری نہیں کی گئی، تو اس لیے یہ متنازع نہیں ہے، یہ بالکل غیر قانونی ہے۔ یہ ایسے سمجھ لیں کہ انہوں نے آئین کی حدیں جو ہے وہ کراس کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سندھ کے حوالے سے پانی پہ ہر ڈور پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، وہ کون جو بھی ریکارڈ ہوئے ہیں وہ پنجاب نے پانی چوری کیا ہے۔ ابھی آپ ماضی کا تھوڑا سا آگے جائیں گے تو 1991 کا ایک ریکارڈ موجود ہے چشمہ جہلم لنک کینال، اس کا آپ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ جو زیادہ پانی آتا ہے برسات میں یا جب ہوتی ہیں بارشیں، تو یہ ایکسس پانی ہوگا تو ہم دریا سے اس نعرے میں چھوڑیں گے، لیکن وہ 12 مہینے چل رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے کیوسک وہ 12 مہینے سندھ کے سندھو دریا سے وہ پانی چوری کر رہے ہیں۔ اور یہ جو چشمہ، یہ جو بھی 6 کینالوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سسٹم میں پانی نہیں ہے۔ ابھی حکومت خود کہتی ہے کہ سندھ میں 20% شارٹیج ہے، لیکن یہ حکومت کا دعویٰ ہے خود، لیکن تو جو گراؤنڈ پہ ہے وہ 30-40 پلس جو ہے نا وہ شارٹیج ہے۔ جب آپ کے سسٹم میں پانی نہیں ہے تو آپ کیسے کینال نکال ہی نہیں سکتے، کینال تو کیا آپ ایک نالی بھی نہیں نکال سکتے ہیں۔ تو یہ بغیر اپروول کے، بغیر اس کے حوالے سے کوئی ایک ڈاکومنٹ چل رہا ہے صدر پاکستان کے حوالے سے 8 جولائی 2024 نے اس کو کوئی میٹنگ کی ہے کمپنیز کے ساتھ جو کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے یا گرین انیشیٹو پاکستان کا، تو سندھ کا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے وہ 27 پینے کے قابل بھی اور کاشت کے قابل ہے، باقی جو انڈر گراؤنڈ واٹر وہ خراب ہے۔ اور جب آپ کا دریا کا پانی نہیں آئے گا تو انڈر واٹر گراؤنڈ اور نیچے چلا جائے گا، تو آپ کا اور پانی نیچے چلا جائے گا اور پانی وہ جو ہے کڑوا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا لا ہے نا، ایک ہمارے پاس وکیل بیٹھا ہوا ہے کہ پانی کا، دریا کا بڑا حق ہوتا ہے جو ریپیرین ہوتے ہیں نا، جو لاسٹ میں ہوتے ہیں، تو لاسٹ میں ڈیلٹا سندھ کا ہوتا ہے، ڈیلٹا یہ پانی ادھر بھی نہیں جا رہا، سرکار میں بجو بلاج تک جاتا ہے، کوفری میں آپ حالت دیکھ لیں، اور ڈیلٹا میں کنٹینیوسلی پانی کی شارٹیج کی وجہ سے آپ سجاور، کھٹا اور بدین کی وہ آپ دیکھیں تو وہ سمندر میں وہ آگے آ رہا۔ جی سے پوچھو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ متنازع نہیں، یہ غیر قانون ہے، یہ سندھ کے دریا کے پانی پہ ڈاکہ ہے۔ جی سر، بول لیا۔ اب ہم اپنے مہمان سائیں بخش زرداری صاحب جو وکیل ہیں وہ ہمیں بہتر بتا سکیں گے۔ سر، آپ کی نظر میں
जो इस वक्त ये कैनाल निकाले गए हैं जिसे मुतनाज़ा और जुल्फ़िकार खास अली साहब ने कहा कि जी गैर कानूनी है, आप कानून की नज़र में इन कैनाल्स को कैसे देख रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कैनाल्स का जो इशूज़ चल रहा है अभी, ये बेस्ड ऑन जो है कि इरसा के सर्टिफिकेट की बुनियाद पर चल रहा है। क्या है इरसा का सर्टिफिकेट? वो है कि क्या अपना 2024 के जनवरी के अंदर इरसा वालों ने जो है कि सर्टिफिकेट जारी किया कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इंडस रिवर के अंदर मौजूद है, जिस पर आप ये कैनाल अपने सारे सॉर्ट आउट करें अपने हिसाब से। अब वो जो सर्टिफिकेट है वो खुद एक कंट्रोवर्शियल सर्टिफिकेट है, बिकॉज कि उसके अंदर अब 5 मेंबर होने हैं एज पर अकॉर्ड जो है 1991 अपार्टमेंट का जो अकॉर्ड हुआ था, वो ये हुआ एग्रीमेंट हुआ था 4 प्रोविंस के दरमियान के अंदर कि वो अपना शेयर मुताबिक पानी डिस्ट्रीब्यूट, उनको अपना अपना हिस्से का पानी मिलेगा। उसके अंदर ये रखा गया था कि 4 सूबों के 4 मेंबर और एक जो मेंबर जो वफाक का मेंबर होगा वो सिंध से बिलोंग करेगा। अब क्या किया, वो जो जनवरी 24 में जो इरसा का जो ये सर्टिफिकेट जारी हुआ, एक तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट में जारी हुआ जो खुद वो इलीगल है, उसके अलावा जो उधर उसके पे जो वफाक का मेंबर है वो बिलोंग सिंध से नहीं करता। इसी बात पर सेनेटर बैरिस्टर जमीर गुमरू साहब ने पिटीशन अपनी दायर की है। रिसेंटली उसका ऑर्डर भी आया है जिस पर जो है एक मुतनज़ा कैनाल जो है कि उस कैनालों को जो है कि उसका फर्दर प्रोसीडिंग उसकी रोकती है, और उस पर जो है कि अटॉर्नी एडवोकेट जनरल साहबान भी उन पेश हुए, इरसा वाले भी पेश हुए। अटॉर्नी जनरल इस बात पर इनकार नहीं कर रहे कि बराबर ये कानून है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मुशर्रफ के गवर्नमेंट के अंदर ये तय हुआ था कि जो 5 मेंबर बैठेंगे, उसी बुनियाद पर उन पे भी उन्होंने इनकार नहीं किया। फर्दर उन्होंने टाइम मांगा है जो 18 अप्रैल तक फिक्स हुआ है, तब तक जो है कैनाल की फर्दर प्रोसीडिंग रुकी हुई है। जी सर, शुक्रिया। अब हम अपने चलेंगे, हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं निसार किरियो साहब, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस चेयरमैन है पूरे सिंध के। हम इनसे जानेंगे कि इनसे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे सवाल है कि आपकी जमात समेत मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो सिंध में एहतजाज कर रही हैं, सिंध भर में, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है आपके ख्याल में? आप इसे कैसे देखते हैं? सर वजह है पानी का मसला, हमारी जिंदगी का मसला है ना। उस वजह से सिंधु दरिया खाली जमीनों को आबाद नहीं करता है, पर पीछे डेल्टा के पूरी पट्टी को, जब ये समुद्र में पानी नहीं जाएगा तो कितनी लाखों एकड़ सिंध की जो जमीन है वो समुद्र के ने ले ली है, और उधर अभी भी कैसी कंडीशन है। और सिंध की जो ज़राअत है वो ऐसे समझो 85-90 सैकड़ों जो है सिंध की ज़राअत पे डिपेंड करते हैं। इस वजह से ये तो इन्होंने पानी का जो कैनाल है, 6 जो कैनाल निकाले जा रहे हैं सिंधु दरिया के ऊपर वफाक की, जी तो सर। इस वजह से पानी जब हमारे पास पीने का नहीं होगा तो ये तो एक समझने वाली बात है। तो कम से कम वफाक से इस बात को तो जहन में रखे, तो जब 3 दरिया उनके पास पहले ही थे, जब पाकिस्तान का जो मुआहदा हुआ था उसमें 3 दरिया थे, और उसके बाद जब उन्होंने इंडिया को भेज दिए हैं तो अभी सिंधु दरिया के ऊपर क्यों कैनाल निकाल रहे हैं? उन्होंने जो भी दिया है, आप अभी भी सिंधु दरिया देखो तो कल कैसा था, आज इसकी कैसी पोजीशन हो गई है। और पूछते हैं तो पानी कहाँ जा रहा है, तो कोई वो उनको ये टेंशन नहीं है। तो पानी सिंध की जमीनें पहले कितनी आबाद थी, अभी कितनी आबाद है, और पंजाब की जमीनें पहले कितनी आबाद थी, अब कितनी आबाद है। कम से कम ये तो उनको होना चाहिए। अभी हमारे जो घरों में पानी आता है वो भी पानी कड़वा हो गया है। तो हम आखिर सिंध के लोग, ये करोड़ों इंसानों का वतन है, मादरे वतन है, तो किस वजह से वफाक ने इसके ऊपर 40% कैसे पानी देंगे जब इन्हों को, और हमारे पास जो एक ही सिंधु दरिया है तो उसमें हमारे हिस्से का जो पानी है उसके ऊपर ये एक भी कैनाल नहीं बनाए तो अच्छा है। क्यों तो सिंध अभी इतना नहीं, हम पूछते हैं तो हमारा पानी हिस्से का 40% तो ये बोल देते हैं, और 40% कैसे देंगे जब उनको पाकिस्तान के जो
बुनियादी थे, उनको अपना पानी हिस्से का मिला था। ये सिंध के हिस्से का पानी में कौन सी ऐसी चीज आ गई है जो पंजाब वफाक इससे पानी का वो हमारे से हक मांग रहा है? वो तो इन्होंने जब बेचे थे, क्या सिंध के ऊपर 5 रुपए या कोई कैनाल के ऊपर थर में देखो, कोई पानी का कोई निजाम नहीं है। उधर किसी ने क्या हुकूमत ने की थी, जहां वफाक ने कभी सोचा है उधर पानी का एक बरसातों के ऊपर वो जिंदगी बसर करते हैं। तो किस वजह से, किस कानून के मुताबिक ये हमें 40% पानी देंगे? तो हमें पानी पूरा शरीयती हिसाब से पुछड़ी जो होता है पीछे वाला हिस्सा, उसका पहला हक है। तो हमारा हक है, ना आइन के मुताबिक ना कानून के मुताबिक जी हमारा पानी ले सकते हैं। जुल्फकार साहब आपकी तरफ आएंगे। सर आप एक सहाफी हैं और माशाल्लाह आपका एक नाम है, आपकी गहरी नजर है। सहाफियों को हमने बहुत कम देखा है कि सहाफत के अलावा मतलब अपने मसाइल के अलावा कहीं एहतजाज करते हुए। हमने देखा है कि आप इसमें बाकायदा लीडिंग कर रहे हैं, लीडर के तौर पर आप सामने आए एहतजाज में। सीनियर सहाफी होते हुए इस एहतजाज को हमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि सहाफी होते हुए इस एहतजाज में आप क्यों शामिल हुए? जी सर। देखो, लोग कहते हैं कि हम प्रोफेशनल जर्नलिज्म में यकीन रखते हैं, लेकिन मैं कमिटेड जर्नलिज्म में यकीन रखता हूँ। जब सिंध के मजलूम लोग की बात आएगी, जब धरती की बात आएगी, तो मैं कलम और कैमरा के साथ रोडों पे पुरअमन एहतजाज भी करूंगा, क्योंकि धरती मेरी माँ है, उसको मैं अपनी माँ मानता हूँ, ठीक है ना। तो जब किसी गरीब मिस्कीन मजलूम के साथ कोई जुल्म करेगा, कलम और कैमरा के जरिए तो मैं उसका आवाज उठाऊंगा, लेकिन रोड पे कानूनी मदद के हवाले से भी मैं उसका जो है ना वो एहतजाज का हिस्सा बनूंगा। लेकिन ये उन मजलूम के बहुत आगे बात है कि ये धरती की बात है, ये सिंध की बात है, ये सिंध के 7 करोड़ लोगों के एक ऐसे कहा कि सर्वाइवल का मसला है, उनके जिंदा रहने का मसला है। तो मैं पहले सिंधी हूँ और बाद में सहाफी हूँ। सर हम सब सिंधी हैं, आपकी बात काटी, यहाँ से इसको कंटिन्यू कीजिएगा। डॉक्टर्स, प्रोफेसर, टीचर्स, यहाँ तक के मजदूर, गरीब लोग, एडवोकेट, तमाम लोग इसमें शामिल हैं और लोगों ने एक बाकायदा ट्रेन चलाया नो मोर केनाल। सर बिल्कुल कंटिन्यू। तो मैं कहता हूँ कि जब धरती पे बात आती है, जब सिंध पे बात आती है, तो सिंध को हर बंदा जो है वो अपनी माँ मानता है। आप देखते हैं कि कल्चर डे जब हम मनाते हैं सकाफत का, वो एक छोटा सेगमेंट है जो अभी सिंध पे वार किया है केनालू के सूरत में। तो आप कहते हैं, देखते हैं उस दिन ईद से ज्यादा खुशी होती है और लोग करोड़ों के तादाद में रोडों पे होते हैं। तो इस मरहले में आप देखिए डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, अपनी वो दवाई के पर्चे लिख रहे हैं, तो उधर लिख रहे हैं नो मोर केनाल्स ऑन इंडस रिवर। बच्चा अपना पेपर दे रहा है, उसके आखिर में लिखता है नो मोर केनाल्स। अब हम आपने देखा कि ईद की खुशियों में हमने हमारी माएँ, बहनें, बेटियों ने वो मेहंदी से लिखे हुए हाथ, वो अपने लिखे हुए मेहंदी नो मोर केनाल्स ऑन इंडस रिवर। हमारा शायर, हमारा अदीब, हमारा वकील। और मैं आपको कहूंगा कि अगर सिंध बचेगा तो मैं सहाफत करूंगा, मेरा प्रेस क्लब भी बचेगा, आपका क्लिनिक भी बचेगा, इंजीनियर का ऑफिस भी बचेगा और बिजनेस भी बचेगा। जब दरिया का पानी नहीं होगा, ये पानी सिर्फ इंसान का मसला नहीं है, ये हमारे आबी जीवत का भी मसला है, ये हमारे जानवरों का भी मसला है और हमारी डेल्टा का भी मसला है, जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट से तबाह हो रहे हैं, सिजावर, बदीन का। तो साफ ही जब सिंध की बात आएगी, जब सिंध के मजलूम की बात आएगी, तो गैरतमंद साहब ही मेरे ख्याल में वो कलम और कैमरा के साथ, उसके साथ रोड पे पुरअमन एहतजाज के जरिए, कानूनी मदद के जरिए उसका साथ जरूर देगा। जी सर बहुत शुक्रिया। जी निसार गिरी साहब आपकी तरफ आएंगे। अच्छा सर, एहतजाजी तहरीकों को कामयाब होने के लिए क्या शराइत हैं? हालिया दिनों में हमने देखा है कि सिंध हाई कोर्ट ने भी स्टे दे दिया है कि जी पानी जो निकाला जा रहा है, जो कैनाल्स निकाले जा रहे हैं, मुतनाज़ा नहरें, उस पे स्टे दे दिया है। आपको क्या लगता है ये एहतजाजी तहरीकों की वजह से हुआ है या बिल्कुल ये अवामी प्रेशर से जी ये अवामी प्रेशर है, उसका नतीजा है। तो जिसने एनओसी दी है, ये तो बिल्कुल जो इधर कोर्ट है वो भी सोचते हैं, देखते हैं, उनको भी ये पता है। तो सिंध की अभी कंडीशन क्या हो सकती है। कराची का जब सिंधु दरिया में पानी नहीं होगा तो कराची में पानी नहीं होगा। और हमारे कोई एक डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा, बदीन, सिजावल, ये 10-15 साल में ये तो पानी के नीचे होंगे और कराची का आधा हिस्सा पानी के नीचे होंगे।
तो स्टे और जदोजहद ये अवामी प्रेशर था, और अवामी प्रेशर ही इंशाल्लाह वफाक को इस जो इन्होंने गलत चीज की है, और सिंध के जो पानी के ये है रास्ते हैं, उनको ये तब्दील करना ये कोई भी अच्छी बात नहीं है। और इंशाल्लाह ताला ये जदोजहद ही इनको वापस अपने पे लेके आएगी। ये कैनाल मुकम्मल इनको रद्द करने पड़ेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम अपने दूसरे मेहमान से पूछते हैं। साहिब जरदारी साहब, आपकी तरफ आएंगे। ये जिस तरीके से एक कानून बना था, ब्रिटिश दौर में बना था, जो पहले ऊंचे इलाके होते थे वो नीचे इलाके जो टेल पे होते थे उनका पानी रोक लेते थे, पानी चोरी कर लेते थे। तो जो नीचे इलाके होते थे वो बेचारे महरूमी का शिकार थे, वहाँ कहत साली हो जाती थी, जानवर भी मर जाते थे, काश्तकारी भी नहीं होती थी, यहाँ तक कि इंसान जो थे वो खुश्क साली से मारे जाते थे। तो ब्रिटिश दौर में एक कानून बनाया गया जिसमें तो ऊंचे इलाके हैं वहां तय किया, कानून बनाया गया, एक रूल बनाया गया कि आप पानी इतना ले सकते हैं, इससे आगे आगे जाएगा। जिस तरीके से इंडिया से तकरीबन 3 नहरें आ रही है, जम्मू कश्मीर से 2 आ रही है, एक हमारी आ रही है उस कश्मीर की तरफ से ही, सॉरी 2 कश्मीर की तरफ से, 3 उधर से, वो आगे पंजाब में मिल रही है, पंजाब हमें प्रोवाइड कर रहा है। कानूनी हैसियत क्या है कि पंजाब इस तरीके से अगर इस कैनाल के ऊपर ज्यादा आवाज उठा रहा है, वो कह रहा है कि जी सारा खर्चा हम करेंगे और हम ही से तामीर करेंगे, आप कैसे देख रहे हैं? सर राइट साहब, पहले तो डॉक्टर साहब आपसे मैं पहले ये बताऊं कि 1991 के अंदर जो अकॉर्ड हुआ है वो एग्रीमेंट भी इसी बुनियाद पर हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होनी है वो प्रॉपर परसेंटेज के हिसाब से होनी है। जिस तरह से 48% पंजाब का है, 42% सिंध का है, उसके अलावा केपी का 7 है, बलूचिस्तान का 3% है। और हमारे पास सिंध के अंदर अलमिया ये है कि तकरीबन पहले तो 20% था, अब तो मोर देन 40% हो गया है। और 15% जो है साउथ पंजाब के अंदर भी है। वहाँ के भी काश्तकार वो भी एहतजाज के अंदर, वो भी एहतजाज पुरजोर हिस्सा ले रहे हैं अपना। सो अभी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हमारे पास शॉर्टफॉल भी इतना है, और उसके अलावा जो है कि जो कानूनी हिसाब से जो है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है कि जो टेल के अंदर है, डाउन स्ट्रीम के अंदर है, उनका मोर इफेक्टिव राइट है मोर देन उनसे जो ऊपर अपर स्ट्रीम के अंदर है। सो उस हवाले से जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी जो जोलिस्तान कैनाल कर रहे हैं उसके अंदर झेलम और इंडस में से जो है कि कमांड जो ले रहे हैं इन 2 दरियाओं से ले रहे हैं, पर ये अपनी पॉलिसी वाजिया नहीं कर रहे हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में से कितना परसेंटेज, कितना हिस्सा दे रहे हैं जो आगे चोलिस्तान को आबाद कर रहे हैं। ये सारा जो है एम्बिग्यूटी और छुपा कर ये सारा अंडरग्राउंड सारा काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा सिंध जो है बहुत इफेक्ट होगा। और उसके लिए हमारी जो है कि कल्टीवेशन की ये पानी नहीं है, पीने की ये पानी है। आपको पता है कि ढाबी जी के कराची के अंदर जब पाइपलाइन कोई टूटती है तो 3-4 दिन के लिए जो है पानी कराची में मैसर नहीं होता, जो टैंकर माफिया जो है उनको पानी पहुंचाती है। तो ये सिर्फ कराची वालों को ये हमसे ज्यादा एहतियात करना चाहिए, ताकि ये पानी आ कहाँ से रहा है भाई, समंदर वो रेत तो आने से रही है, तो सब सिंध के दरिया का ही पानी है ना जो ढाबी जी तक पहुंचता है। और उसके अलावा जो है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है कि उसके लिए भी जो है कि हमारा डेल्टा के हवाले से भी जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारा किस तरह से काम आता है। मीठा पानी जाता है तो फॉरेस्ट से वो दरख्त उगते हैं जो हमारे स्टूम साइक्लोन और बरसात के टाइम पे हमें काम देते हैं। बकाया दूसरा जो है कि अपना सजावल, ठट्ठा, बदीन जो है ये डेल्टा है, ये सारा सिल्ट होता जा रहा है, समंदर उनको खाता जा रहा है। जब तक मीठा पानी नहीं मिलेगा तब तक नहीं तो ये तबाह हो जाएंगे। तो लिहाजा इस वजह से जो है कि टेल वालों का हमारा ज्यादा राइट है। और जो पहले भी दरिया जो 3 दरिया जो है लियाकत अली खान के 1916 के अंदर जो है कि बेचे गए थे, उसमें सिंध से कोई कंसेंट नहीं ली थी। अभी भी जो है कि हमारे सिंध से भी कोई भी कंसेंट वगैरह नहीं ली, सो नुमाइंदगी कोई नहीं है, बस इरसा का एक सर्टिफिकेट है जिसके बुनियाद पर ये स्कीमें चालू हो गई। सो ये जो इरसा का सर्टिफिकेट, ये स्कीम सारी गैर कानूनी है, मुतनाज़ा है, और जिसके लिए हमें CCI की जो है कि अप्रोप्रिएट फोरम है जिसमें जो है कि हमें सब जो है इनको अप्रोच भी करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को जो है कि अपना किरदार जो है प्रॉपर अदा करना चाहिए। शुक्रिया। आपकी इरसा की बात को आगे लेके चलेंगे। इरसा ने सर 2 मौके दिए हैं। पहला मौके उसने ये दिया कि साल जो है ये जो नहरें हैं, कैनाल हैं, ये चलते रहेंगे, लेकिन पानी होने पर, ये पहला उनका था। लेकिन मुतनाज़ा फिर दूसरा आ गया। दूसरा मौके उनका ये था अप्रैल से सितंबर तक चलेंगे, तो ये एक अलग उन्होंने मौके दे दिया कि 6 महीने तक ये चलेंगे। तो आपकी बात को आगे लेके चलते हैं सर की तरफ, जुल्फिकार खास अली की तरफ। सर, आप क्या देखते हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत पे भी है, कहा जाए नहीं भी है और कहा जाए तो है भी है। तो एक तरफ इनकी नोक-झोंक चल रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत को धमकियां दे रही है, हुकूमत उन्हें दे रही है। आप क्या देखते हैं पीपल्स पार्टी को क्या किरदार अदा करना चाहिए ताकि ये मसला जल्द से जल्द
हल हो जाए, क्योंकि मैशियत तबाह हो रही है, सिंध की लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कारोबार खराब है लोगों के, लोगों ने अपनी जिंदगी और बका की जंग समझा है। क्या कहेंगे सर? देखो, पीपल्स पार्टी जो है वो उसको जायद जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी इक़्तिदार में है, सिंध के लोगों ने उनको मैंडेट दिया है और वो सिंध गवर्नमेंट में भी है और फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी वो जो है अलाइज ज़रूर है कि उनके बनी हुई है। देखो, पीपल्स पार्टी के हवाले से जो मैंने भी बात की कि वो 8 जुलाई 2024 का जो आर्डर चल रहा है अप्रूवल, जो कोई गैर कानूनी है, क्योंकि सदर ऐसे अप्रूवल दे ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अभी वो गलत है या सही है, अभी इसमें हम ये डिमांड नहीं करते कि आप अलग हो जाएं, आप सिंध हुकूमत से। इस एहतजाज में सिर्फ एंटी पीपल्स पार्टी वाली तंजीमें नहीं है, इसमें सिंध का हर बंदा, हर बच्चा जो न्यूट्रल है वो भी इस तहरीक में शामिल है। अभी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सहाफ़ी है। तो अगर वो जो डॉक्यूमेंट है, जो अप्रूवल्स है, वो अगर प्रेसिडेंट ने दिए तो वो वापस भी वही ले सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के नीचे सब आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उसके पीछे नीचे आते हैं, सीएम भी उसके नीचे थे। अभी डीसी का निकला हुआ लेटर्स असिस्टेंट कमिश्नर उसको डिनाई नहीं कर सकता, उसको वापस नहीं ले सकता या मुख्तार का नहीं ले सकता है। तो हमने पहले कहा कि ये अगर कोई बात की है तो गैर कानूनी है। दूसरी बात, जैसे कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट को ये मैंडेट ही नहीं है कि इतने, वो केयर टेकर का मैंडेट यही होता है कि वो सिर्फ इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो 3 महीने या 6 महीने, वैसे 3 महीने, लेकिन वो अगर उसको लेंदी करते तो उसका कोई बड़ी वो स्कीम नहीं बना सकते, बड़ा कोई ऐसा फैसला नहीं करा सकते, क्योंकि वो सिर्फ राइट जो अवाम के वोटों से मुंतखब पार्लियामेंट आती है उसको राइट है। तो ये जो जनवरी 24 में जो अरसा ने भी सर्टिफिकेट दिया वो भी गैर कानूनी है और इसमें पीपल्स पार्टी के लिए कोई मसला ही नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मीटिंग मिनट्स चेंज हुए, तो भाई ये मीटिंग मिनट्स सदर पाकिस्तान की कैसे चेंज हो सके? तो आप या तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें जिसने चेंज किए, नहीं तो आप सिंपल सा आर्डर वापस ले लें। और ये जो सिंध के लोग हैं वो कुछ भी नहीं चाहते, सर बहुत नफरत बिल्कुल। और सिंध के लोग जो है, जो आम लोग कर रहे हैं, वो उनको कुर्सी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ को हटा के हमें देखो या मुराद अली शाह को। तो सिंध के लोग सिंध पे, दरिया पे, पानी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप देखो, हर लोग एहतजाज में शरीक है, आपने खुद कहा। पीपल्स पार्टी खुद भी शामिल है, बिल्कुल बिल्कुल शामिल। लेकिन पीपल्स पार्टी को हुकूमत को एहतजाज नहीं करना चाहिए, हुकूमत को डिसीजन लेना चाहिए ना। अपोजिशन का एहतजाज बनता है। हमने तो अपने लाइफ में यही देखा है कि अपोजिशन ही एहतजाज करता है। ये पहली मर्तबा ये हुकूमत एहतजाज कर रही है ना, तो ये सोचना चाहिए पीपल्स पार्टी का वोट बैंक किधर है। तो पीपल्स पार्टी को ये वापस लेना चाहिए। अगर ये तहरीक एक और नफरत में चली जाएगी तो बड़ा नुकसान होगा, और ये वफाक के लिए भी बड़ा नुकसान है ना, कि फेडरेशन के लिए भी बड़ा नुकसान है। जी सर, तो थैंक यू। जी सर, शुक्रिया। सर, सिंध में पानी की कमी को हल करने के लिए आपकी जमात और आपका क्या जो है मशवरा होगा हुकूमत को, और क्या इकदाम उठाने चाहिए कि सिंध का जो पानी का मसला ये हल हो जाए? देखो, हमारा तो ये डेली एहतजाज डॉक्टर कादिर मंसी की, ये अभी हमारा चौथा फेज कल से चलेगा, जिसमें पूरी सिंध में धरने हैं। जो भी वफाक के पंजाब के घोटकी से लेके और कराची से लेके ऐसे समझो कश्मीर तलक हमारे पूरे 1 महीने के धरने हैं, ठीक है ना। इसमें हम वफाक को बोलते हैं, मुल्क का प्रेसिडेंट जरदारी साहब, उसको ये बताना चाहते हैं। तो आपने जो एनओसी दी है, जैसे सिंध असेंबली में आपने इस चीज को लेके आए, ऐसे ही आप बलूचिस्तान से पास कराएं और इदारों को पास करा के और इनको दें। और हमारे पानी का क्या, ये आज तक इन्होंने कोई सिंध के ऊपर, हम बोल रहे हैं ना, थर देखो कितने सालों से उधर पानी का एक नहीं है, तो उधर कैसे ये सिंध हुकूमत हो, वफाक हुकूमत हो, तो कैसे इन्होंने कभी उधर आके काम किया है? पंजाब पे रेगिस्तान के लिए ये पानी तो हाथ करते हैं, पर सिंध के थर के लिए कभी इन्होंने काम नहीं किया है। हमारा ये कहना है, तो सिंधु दरिया का जो पानी है उस पे किसी का हक नहीं है सिवाय सिंध का हक के, जिसके लिए वो पानी कहाँ से आता है, कहाँ तलक जाता है, और उसका जो आखिरी छोड़ होता है वो भी हमारे बेनिफिट में होगा,
जब तक समुद्र को पानी दरिया का, सिंधु दरिया का उधर जाके पहुंचेगा तो वो पीछे हटेगा, नहीं तो सिंध में क़यामत बर्पा होगी। और जब हम ये वफाक ने तय कर दिया है तो सिंध को हम ऐसे ही करोड़ों इंसानों को हम मार के खत्म करेंगे, तो उससे अच्छा है तो हम जंग के मैदान की चॉइस करेंगे। और इंशाल्लाह एसटीपी डॉक्टर कादिर मक्सी की क़यादत में ये कैनाल वापस इन्हों को लेने पड़ेंगे। और जब तक ये कैनाल वापस नहीं होगी, पंजाब की चोरी बंद नहीं होगी, तो कैसे हमारे पास पानी पहुंचेगा। जी ये सर, उन्हों को सोचना चाहिए। हुकूमत उन्हों के हाथ में है, मशीनरी उन्हों के हाथ में है। बाकी हर जगह पे कोई देखो, कोई कंपनी ठेका उठाती है। एक तो इधर हमारे जो कंपनियां है ना, उन्हों का भी ये नहीं है, तो ये लोग हैं, इंसान है, ये टैक्स पेड करते हैं, इन्हों का भी हक है, पर वो सिंध को पता नहीं किस वजह से। बाकी इंशाल्लाह ये जदोजहदी जनरल जियाद जैसे आमिर को जब वो कर सकते हैं, तो वफाक और शहबाज शरीफ हो या आसिफ जरदारी हो, इनको इंशाल्लाह ताला जब तक ये हमारा पानी बिल्कुल नहीं होगा तो तरक्की पसंद पार्टी इस पे सरापा एहतजाज होगी। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। साहिब जरदारी साहब, आपकी तरफ दोबारा आएंगे, आपसे ये पूछेंगे कि आप हमें ये बताइए कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं कानूनी तौर पर कि पीपल्स पार्टी एक तरफ हुकूमत की अलायंस है और दूसरी तरफ वो एहतजाज भी कर रही है। क्या पीपल्स पार्टी चाहे, जिस तरीके से हमने देखा कि बड़े बड़े वजीर एक दूसरे को बोल रहे हैं अगर हम नहीं होंगे तो तुम भी नहीं होगे, इधर से बोलते हैं हम गए तो तुम भी गए, तो सिंध में इतनी नफरत फैल रही है, इस मसले का हल कानूनी और मसला आप क्या देंगे? देखो डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो 8 जुलाई को जो 2024 को एक मिनट्स ऑफ मीटिंग का जो लेटर जो है सर्कुलेट हो रहा है, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो की गई है, सदर आसिफ अली जरदारी साहब जिन्होंने के उसकी सिग्नेचर की भी मीटिंग के हवाले से सिग्नेचर है। देखिए, मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग, दिस इज नॉट अ डिसीजन। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जिसके अंदर किसी एजेंडे के अंदर बातचीत बंदा करता है, वो डिसीजन नहीं है। अगर कोई डिसीजन है, ऐसा कोई लेटर जो है अप्रूवल का, कोई ऐसा लेटर सर्कुलेट नहीं हुआ है। बाकी रही बात क्या कहते हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना जॉइंट हाउस सेशन के अंदर उन्होंने अपना क्लियर मौक़िफ़ दे चुके हैं, जो अप्रोप्रिएट फोरम की है, सुप्रीम फोरम की है। और उसके साथ जो है कि बैरिस्टर ज़मीर गुमर साहब जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उन्होंने भी कानूनी चारागोई करके इसा के सर्टिफिकेट को चैलेंज भी कर दिया, जिसके फर्दर प्रोसीडिंग ऑफ कैनाल वो भी, उस पर भी स्टे ऑर्डर हमें मिल चुका है। बाकी अब रही बात क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएट फोरम जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जिसकी जो है कि चेयरपर्सन जो हैं अपना प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं और 4 सूबों के जो है सीएम साहब भी हैं और 3 जो है कि जो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो करेंगे। सो उस हवाले से जो है कि एतराज़ात जो सीएम हाउस में से जो एतराज़ात जो है सीसीआई की तरफ जा चुके हैं, वो कानूनी चारागोई उसकी भी हो चुकी है, उधर कोर्ट में भी हो चुकी है, जॉइंट सेशंस में भी उन्होंने अपना स्टैंस अपना दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल से जो है कि पीपल्स पार्टी अपना हुकूमत में होते हुए जो अपना अप्रोप्रिएट काम है वो अपना काम कर रही है। बाकी उसका फाइनल जो भी डिसीजन जो है कि अप्रोप्रिएट सीसीआई जो है उसके बाद जो है कुछ बात हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया। निसार गिरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। साहिब जरदारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर जुल्फकार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और इस बहुत ज्यादा बर्निंग इशू पे आपने अपनी राय भी दी और इजहार भी किया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप सब देखने वालों का शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।